Subrakant Panda. A big round of applause as we welcome our esteemed dignitaries on stage. We once again extend a very warm welcome to all our esteemed dignitaries on dais and welcome all of you to this very important event organized by the Industries Department, Government of Orissa, in association with FICCI in the run-up to Utkarsh Orissa, Make in Orissa Conclave 2025. Ambitious initiatives in a very short period of time. In the first 100 days of his government, the state has already attracted a hefty rupees 45,000 crore investment across diverse sectors. Shri Mohan Charan Maji, Honorable Minister Industries, my colleagues on the dais, Shri Panda, distinguished guests, captains from the industry, my senior colleagues who are present here, I extend a very warm welcome to all of you from the Government of Odisha. And also thank you for taking out time and being with us here today. There's a new government which is, all of you are aware, which has been formed in Odisha. And I think from your perspective, one question arises. You know, is there going to be policy continuity, or is there going to be uncertainty, or are there going to be changes? Let me assure you that as during discussions we learn and what we are told, the government is committed for industrialization. That assurance remains. And secondly, the only thing which is not continuing is the Honorable CM says that we should press on the accelerator and we should go even faster on industrialization. State develops very fast. It's primarily an agrarian state, but the transition is happening. We are at a base level where we feel the state can grow, take off and grow much faster. So the state is very clear in its objectives. We have a demographic dividend. We have 4.4 crore people, a lot of them young, and what they want is jobs and employment. Investment there, are you going to get your returns? And then you would also compare with other states. And that question, why Odisha?
Did you like this video? No, I don't think you liked it. On behalf of the Government of Odisha Industries Department and with the permission of our Honorable Chief Minister, in terms of investment opportunities, मैं आप लोग को मेरा क्षेत्र में आइए, इन्वेस्ट करिए, ये बुलाऊंगा, ये मेरे लिए घातक हो सकता है। सरकार का मंत्री के नाते मैं आपको, भारत सरकार का मंत्री के नाते इन्वेस्ट करिए और उसके लिए आप आइए उड़ीसा में, ये मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो काम होगा उड़ीसा गवर्नमेंट में, भारत सरकार के ओर से कोई भी रुकावट नहीं आएगा, कोई भी रुकावट नहीं। अभी मैं तो जानता नहीं वो आपका जो बड़ा बड़ा कंपनी रिलायंस वाला कोई है कि नहीं, अदानी वाले हैं कि नहीं, JSW JSPL वाले हैं कि नहीं, आप पुनीत डालमिया तो बैठे हुए हैं भारत ये का, और बाकी सब लोग हैं, रूमटा कंपनी वाले हैं कि नहीं मैं जानता नहीं, अब बिरला वाले हैं कि नहीं मैं जानता नहीं, लेकिन ये लोग सब मेरा क्षेत्र में काम करते हैं। अब मेरा क्षेत्र में काम करते हैं, मैं 6 बार का MP हूँ, 3 बार का केंद्र मंत्री हूँ, तो मेरा माने सहयोग के बिना ये लोग कर पाए होंगे, ऐसा लगता है क्या आपको? लेकिन मैं आपको पब्लिकली तारीफ नहीं करूँगा, नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मेरा वोट कट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। 2-3 बात है, एक तो माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं और चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोग हैं। हमारा उड़ीसा का इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो लास्ट टाइम में जो गवर्नमेंट जितना भी हुआ है उसमें वो ठीक नहीं है, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं शुरू से 27 फरवरी 1990 को मैंने विधायक बना, अब बीजू पटनायक चीफ मिनिस्टर होते थे, अब हमारा 2 ही MLA होते थे, मैं और विक्रम केसरी 2, तो उस समय में बीजू बाबू किसी को रिप्लाई नहीं देते थे, केवल मेरे को देते थे। माइनिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बाकी सब के बारे में मैं उसमें भाषण देता था तो वो मेरे को रिप्लाई देते थे, बाकी लोगों को नहीं देते थे, उनका कांग्रेस पार्टी का, अब बाकी को मेरे को देते थे। तो मेरा एक्सपीरियंस पूछा कि माइनिंग में कितना साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरा उम्र है कागज पत्र में 63, एक्चुअली मैं 65 हूँ। तो कितना साल का एक्सपीरियंस है बोला, तो मेरा 60 साल का एक्सपीरियंस है। 60 साल का एक्सपीरियंस, अरे साला मैं तो पैदा हुआ तो माइनिंग में, पानी तो पी रहा हूँ माइनिंग में, देख तो रहा हूँ माइन सोनर को। तो माइनिंग का एक्सपीरियंस मेरे को पूछना, बारसवा का आपका प्लांट जो है वो मेरा घर से 20 किलोमीटर में है। अब तो हम तो माइनिंग के सिवा दूसरा क्या देख रहा है, उसी को देख रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस जितना है माइन सोनर का भी उतना ही होगा, नहीं उससे कम भी होगा थोड़ा। तो इसलिए मैं 60 साल का एक्सपीरियंस हूँ। ये इंडस्ट्री वाले राउरकेला स्टील प्लांट वाले, मेरा जन्म मैंने 61 में प्लांट आया, लेकिन जिस दिन से मैंने विधायक हुआ उस दिन से हर साल कुछ ना कुछ एडिटेशन होता रहता है। क्यों ना, हमारा डिस्प्लेस लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, डिस्प्लेस लोगों को नौकरी दो, इतना जमीन ले लिया है, इस जमीन का पूरा हिसाब किताब करो, वो करते नहीं है। आप लोग भी नहीं करते हैं, हमारा उड़ीसा सरकार, इसको करिए। जिसको हम इंडस्ट्री को जमीन देंगे, बाकायदा जमीन देंगे, लेकिन उस जमीन का अभी का आप पहले तो नहीं था, अभी के हिसाब से आप 5 साल में उसको यूटिलाइज करेंगे, अगर नहीं यूटिलाइज करेंगे तो आपस करेंगे। हमारे वहाँ राउरकेला स्टील प्लांट है, पहले MD वो नहीं मिलता था चीफ मिनिस्टर को, RN सिंह तो चीफ मिनिस्टर था, वो गया तो चीफ मिनिस्टर को मिलने आया नहीं उस समय का MD। तो DG पुलिस को वो ऑर्डर किया, राजा लोग कॉला ऑर्डर कॉला अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग टू माई, ये बोला अरेस्ट करके बांध के लाओ। उस दिन से प्रोटोकॉल में चेंज हुआ कि MD जो होंगे या हेड होंगे राउरकेला स्टील प्लांट का, वो चीफ मिनिस्टर आने से उनको मिलने जाएंगे या उनको फूल ये भेजेंगे, नहीं तो वो भी नहीं भेजते थे। तो मैं क्या बोलता हूँ, नागरा जमींदार मैंने पानपत सब डिवीजन, वो हमारा राजा जमींदार का था, आज तो वो जमींदार हो गया है राउरकेला स्टील प्लांट का जो मालिक है। SP उसका अंडर में है,
डीआईजी उसका अंडर मतलब उनको मकान दिया है, एडीएम का मकान वो दिया है। ये क्या है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत करिए। 2-3 पॉलिसी के बारे में, हमारा जमीन हमारा है, राज्य सरकार का, हम जिसको जहां देंगे वो जाएंगे। आप पहला कानून बनाइए कि 58 सब डिवीजन है, 58 सब डिवीजन में ये लोग वो चॉइस करें कौन कहाँ जाएगा। आप खाली कटक में, भुवनेश्वर में, राउरकेला में, बालेश्वर में, झारसुगुड़ा में इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री बना रहा है, पोल्यूशन के पोल्यूशन बढ़ाते जा रहा है। ये नहीं होने देंगे, हम तो इसका फेवर में नहीं है। Foreign direct investment and the stepping stone for this goal, ladies and gentlemen, is going to be Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave 2025. Today, the Honorable Chief Minister will set the ball rolling for achieving that vision. So with a huge round of applause from all of you, let me welcome our Honorable Chief Minister to address this wonderful gathering.